دنیا ہزار رنگ سے میں ہوں آپ کا میزبان زاہد سومرو. سلام عرض ہے دوستو. آج 10 جنوری 2026 سیٹرڈے کا دن اور صبح کے 10 بجے کا ٹائم، اور اس وقت میں ML2 کے ایک ابینڈنٹ اسٹیشن پر موجود ہوں جس کا نام انڑ پور ہے. انڑ پور ریلوے اسٹیشن کوٹری سے 32 کلومیٹر فاصلے پر موجود، جس کی ایک طرف کیڈٹ کالج پیٹارو ریلوے اسٹیشن اور دوسری طرف بڈھا پور ریلوے اسٹیشن. تو درمیان کا یہ ایک ابینڈنٹ اسٹیشن. تو آج ہم رنگ بکھیریں گے انڑ پور ریلوے اسٹیشن پر، اور بات ہوگی ہسٹری کے حوالے سے بھی. ریل فیننگ نہیں ہو سکے گی کیونکہ سیکشن میں رات کے وقت یہاں سے گاڑیاں تھی، اور میں نے کوشش کی کہ میں اپروچ بناؤں شام تک یہاں پہنچ جانے کے لیے. تو کل میں پڑیدن سے نکلا تھا 14 ڈاؤن سے، مگر پہنچتے پہنچتے جام شورو تک میں رات کے 8 بج گئے. دھند کی وجہ سے گاڑیاں کافی لیٹ رننگ کے ساتھ چل رہی ہیں، اس وجہ سے مجھے لیٹ ہو گئی. تو میری جو نائٹ اسٹے ہو گئی وہ ہو گئی جام شورو پر. تو یہاں پر میں بائی روڈ پہنچا ہوں کیونکہ ابینڈنٹ اسٹیشن ہے، یہاں پر گاڑی کھڑی نہیں ہوتی. تو ابھی 10 بجے کا ٹائم. تو آج ذکر کریں گے انڑ پور کے حوالے سے. کوشش کروں گا کہ یہاں کی لوکیشن اور پس گردائی کی جو لوکیشن ہے، گاؤں ہے، ان کا بھی کوئی وزٹ کیا جائے اور ان کے حوالے سے بھی کچھ بات چیت کی جائے. تو میرے ساتھ جڑے رہیے. ولاگ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا، انفارمیٹیو ہوگا. تو آئیے کیپچر کرتے ہیں ایک ابینڈنٹ اسٹرکچر ML2 پر موجود انڑ پور کو. تعلقہ کوٹری ضلع جام شورو کے حدود میں واقع 32.13 کلومیٹر پر موجود انڑ پور ریلوے اسٹیشن، جو کہ آج ہمارا زیر بحث موضوع ہے. تو یہ چھوٹی سی بلڈنگ ہے، اسٹرکچر ہے. یہ بلڈنگ اگست 2016 میں بنی تھی، اور پچھلی جو برٹش ایرا کی بلڈنگ ہے وہ بھی آپ کو وزٹ کراتے ہیں. ایک روایتی سی بلڈنگ، لیمپ روم سب سے پہلا کمرہ. اور اس کے بعد یہ ایک عدد ویٹنگ روم. آگے دفتر اسٹیشن ماسٹر. اور اس طرف ایک عدد اسٹور. تو یہ ایک چھوٹا سا اسٹرکچر 2016 میں بنایا گیا، اور یہ اس کا چھوٹا سا ویٹنگ ہال. اور یہاں پر یہ جی ٹکٹنگ کا عمل بھی ہوتا تھا. یہ ٹکٹ ونڈو تھی، اور اس کے ساتھ ہی یہ دفتر اسٹیشن ماسٹر آفس. تو جناب یہ برٹش ایرا کا بنا ہوا یہ دفتر اسٹیشن ماسٹر، جو کہ اب بالکل ختم ہو چکا ہے. آگے یہ کوارٹرز کی بھی ایک سیریز لائن نظر آ رہی ہے. تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ بھی ابینڈنٹ ہے سارے، کیونکہ اسٹیشن اگست 2023 سے بند ہے. ہر اسٹیشن پر یہ مائکرو ویو ٹاور. تو دوستو یہ بنیادی طور پر علاقہ بہت زرخیز اس حوالے سے ہے کہ برسات کے دنوں پر یہاں پر 2-4 کلومیٹر یہاں سے دوری پر ایک ہلز کا سلسلہ ہے، ماؤنٹینز کا سلسلہ ہے. تو جب برساتی پانی وہاں سے گزرتا ہے، آتا ہے، تو بڑی ہی تیزی کے ساتھ. تو یہ اسٹیشن کافی مرتبہ سیلاب کی نظر بھی ہوا. تو اسی سیلاب کے پیش نظر یہ نئی بلڈنگ بنائی گئی ہے، مگر 2023 سے یہ بھی بالکل بے سود ہو چکی ہے. اور یہ سامنے یہ چھوٹا سا پلیٹ فارم.
यार्ड में सिर्फ 2 लाइनें हैं जनाब। एक मेन लाइन है सबसे पहली लाइन, और उससे आगे सेकंड जो है वो लूप लाइन, जो कि अक्सर औकात क्रॉसिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होती थी। एक अदद साइडिंग भी दस्तयाब। इस जानिब है जी आपका बुढ़ापुर रेलवे स्टेशन, और जनाब मेरे दाएं जानिब कैडेट कॉलेज पेटारो। तो दोनों स्टेशंस के दरमियान ये आप देख सकते हैं इस सराउंडिंग में स्टेशन के आसपास एक जंगल सा उगाया है, और मुझे आधा घंटा हुआ है मैं यहाँ पर लोकेशन पर मौजूद हूँ। तो तकरीबन मैंने देखा है कि काफ़ी यहाँ पर जो जानवर हैं, माल है, भेड़ बकरियाँ गाय भैंसें, तो माशाल्लाह काफ़ी तादाद में मुझे नज़र आई हैं इधर। दोस्तों भले वक्तों की एक निशानी, यहाँ पर बेल लटकाई जाती थी, जिसके ज़रिए आप कह सकते हैं कि जी गाड़ियों के आने जाने के लिए अनाउंसमेंट का एक ज़रिया, जिसकी बजने से, जिसकी आवाज़ से यहाँ पर मौजूद लोग जो है वो तैयार हो जाते थे कि जी गाड़ी अब नज़दीक है। और खुशकिस्मती से स्टेशन की इस एक्सप्लोरेशन के दौरान में ये बुज़ुर्ग आके हमसे मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा शाला खुश आए हो? खैरियत ठीक ठाक? अल्लाह कैसा? चाचा क्या नाम है आपका? बाबा मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी, यहाँ गांव है हमारा, नजदीक है, बराबर में। अच्छा अच्छा, तो आप रेलवे एम्प्लॉय हैं? जी जी हाँ। क्या ये मैं पहले जो था गैंग में था, बाद में फिर गेटमैन में चला गया। अच्छा, गेट कीपर। जी जी। उसके बाद में अनफिट हो गया पीवीटी में जी। तो फिर हमारे को चौकीदार रखा दादू में, रेस्ट हाउस में। अच्छा, या वहाँ से अभी रिटायर हो गया हूँ। ये किस साल में रिटायरमेंट हुई आपकी? मेरे ख्याल में तो 16 में हुई है। 2016 में। कितने साल नौकरी की रेल की? रेल के हम तो इतने पढ़े हुए नहीं है। हाँ। मगर तकरीबन तो फिर भी 27-28 साल हो गया होगा। हो गया। कैसा माहौल था स्टेशन का? ये माहौल जो है बहुत पहले तो अच्छा था, और बाद में जो है तो फिर ये आमदनी, ये बरसातों की वजह से, पानी की वजह से स्टेशन पे दरबदर हो गई थी। जी जी। कैडेट कॉलेज पेटारो एंड पर मौजूद हूँ, और ये सामने अबेंडन क्वार्टर्स हैं, और इसके साथ ही ये नेमिंग बोर्ड उन्नड़पुर 3 जुबानों में लिखा हुआ। और यहाँ से ये यार्ड की पोजीशन। बिल्कुल जंगल है। दोस्तों हमारे साथ आज मोहतरम नसरुल्ला लंजार साहब हैं जी, नौजवान हैं यहाँ के और यहीं के मकामी हैं। बिल्कुल रेल के साथ हम चलेंगे गोठ मांझू, जो कि बिल्कुल रेलवे स्टेशन के करीब है। तो यहीं पर पैदा हुए और माशाल्लाह ड्यूटी वगैरह तो रेल में ही है। खुशकिस्मती से असिस्टेंट एएसएम गुज़श्ता 5 सालों से मुख्तलिफ स्टेशंस पर ड्यूटी भी सर अंजाम देते आए हैं। तो आज हम नसरुल्ला साहब से पूछते हैं कि इनका बचपन तो इसी स्टेशन पर गुजरा है, तो उस वक्त माहौल स्टेशन का कैसा था, कैसी रौनक थी? जी नसरुल्ला साहब। मेरा बचपन यहाँ पे उन्नड़पुर स्टेशन पे गुजरा है। मेरा वालिद साहब भी यहाँ पे पॉइंट्समैन, एज अ पॉइंट्समैन काम करके गया है। 2019 31 दिसंबर को रिटायर हुआ है यहाँ से। यहाँ पे पहले माहौल ये था, अप डाउन गाड़ियाँ चलती थी। दिन में 2-2 पैसेंजर चलती थी, 2 अप में 2 डाउन में, और रात में ये खुशहाल खान खटक कंटिन्यू चलती थी और बुलान भी चलती थी। अभी तो बंद हो गई है, गुड्स भी थी उस टाइम पे, अभी काफ़ी गाड़ियाँ बंद हो गई है। खुशहाल खान खटक 2020 से बंद हो गई थी, अभी बहाल हो गई है, टर्न वाइज चल रही है, और बुलान भी जो टर्न वाइज चल रही है। बाकी अभी स्टेशन बंद हो गई है, अभी यही 2 दिन में गाड़ियाँ हैं, 2 रात में, लेकिन वो टर्न वाइज चल रही है। सही सही।
تو اس اسٹیشن سے یہاں کی کون سی مقامی آبادی ہے جو فائدہ اٹھاتی تھی گاڑیوں میں آنا جانا, جن کو سہولت تھی؟ यहाँ पे हमारा पूरा गांव है, लंजार है हम. जी. यहाँ पे हम आते जाते थे कोटरी, जो ड्यूटी के दौरान कोई दादू जाता था, कोई आगे खानोट हर स्टेशन का स्टाफ था. यहाँ पे भी यहाँ से जाने के लिए ये सहूलत थी. हर कौम जो जहाँ पे रह रही है अभी, सारी कौमें यहाँ से फ़ायदा उठाती थी इन पैसेंजर गाड़ियों से. दोस्तों ये स्टेशन ब्रिटिश एरा से कायम है. एच एंटिगन की गज़ट में भी इसका जिक्र मौजूद है. पीछे इमारत आपको मैं दिखा चुका हूँ जो कि ब्रिटिश एरा से ताल्लुक़ रखती है, और ये इमारत यहीं के रहने वाले थे जी. हमारे रेल में डिप्टी डीएस के अहदे तक ऊपर गए, हेडक्वार्टर में भी काफ़ी अरसा उन्होंने गुजारा, जनाब मोहतरम अशरफ लंजार साहब. तो इनकी कोशिशों की वजह से ये नई बिल्डिंग 2016 में तामीर हुई, क्योंकि ये यहाँ से मेरे सामने ईस्ट की तरफ दरियाए सिंध है जो तकरीबन कोई 2.5-3 किलोमीटर यहाँ से दूर है. तो काफ़ी सैलाबों की वजह से भी ये स्टेशन मुतासर होता रहा है, और दो तरफा सैलाब आते थे. या तो दरिया का कभी सैलाब आ गया, तो कभी बरसात की वजह से पहाड़ियों से पानी आ गया. तो उस वजह से ये अक्सर ये स्टेशन मुतासर होता था. और जब ये स्टेशन डूब जाता था तो फिर लूप लाइन पर एक कैरेज वैगन में ऑफिस को आर्जी तौर पर मुंतकिल किया जाता था 2-3 महीने के लिए, जब तक कि वो पानी सूख जाए. तो इस वजह से ये सफ़र इस स्टेशन का चलता रहा और 2023 अगस्त में इस स्टेशन को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया. तो तब से एक बंद अबेंडन स्ट्रक्चर. वैसे ही यहाँ पर इतनी कोई बड़ी आबादियाँ नहीं थी. उन्नड़पुर गांव यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, जिसकी निस्बत से इस स्टेशन का नाम पड़ा. तो वो गांव अब भी मौजूद है, मगर उस गांव में भी वो आबादी नहीं जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि सहूलतों की ना होने की वजह से लोग वहाँ से शिफ्ट होकर बड़े शहरों की तरफ माइग्रेट करके चले गए, अपने बच्चों की तालीम के हवाले से, रोज़गार के हवाले से. तो ये एक पसमानदा सा इलाका है सिंध का, और डिस्ट्रिक्ट जामशोरो की हदूद में आता है. और वैसे ये स्टेशन जिसका कोड UNR है और कराची डिवीज़न में की हदूद में ये आता है. तो आइए अब चलते हैं गांव मांझू की तरफ, तो आपको मांझू के हवाले से भी कुछ हिस्ट्री बताएंगे. आइए मेरे साथ. दोस्तों ये है नेमिंग बोर्ड उन्नड़पुर बुढ़ापुर एंड का. 32.13 पर ये स्टेशन मौजूद है, और जबकि आगे 40 किलोमीटर पर बुढ़ापुर रेलवे स्टेशन. तो यहाँ से अगर हम जायज़ा लेंगे यार्ड का, स्टेशन का, तो कुछ इस तरह से होता है सिलसिला. तो दोस्तों यहाँ से ये पगडंडी नीचे जाएगी, ये छोटा सा रास्ता है गोठ मांझू की तरफ. तो चलते हैं अब गांव मांझू की तरफ, और मांझू के हवाले से आपको कुछ मालूमात देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक तारीख़ी गांव है और उस गांव की हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आपको वाकई में बहुत ही मज़ा आएगा, आप लुत्फ़ लेंगे तारीख़ का, और इस इलाके की जो लोकेलिटी है उसके हवाले से बात होगी. दोस्तों इस वक्त मैं गोठ मांझू में मौजूद हूँ, जो कि बिल्कुल रेलवे लाइन के साथ ही यहाँ पर वजूद रखता है, और बहुत ही कदीम गांव जो कभी दरियाए सिंध के किनारे पर आबाद था, मगर आए दिन की जो सैलाबी कैफियत में वो मलियामेट हो जाया करता था, फिर दोबारा से उसको बनाया जाता था. आखिरकार लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए, और तकरीबन ये कोई 1970 की दहाई में यहाँ पर यह गांव मांझू आबाद हुआ. मगर जो मांझू असल में दरिया किनारे था, उसके हवाले से एक आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि आज का जो कराची आप देख रहे हैं,
اس کو بنانے والے, اس کو اس جدید شکل میں اس کی بنیاد رکھنے والے ہرچند رائے وشن داس صاحب اسی گاؤں مانجھو کے رہنے والے تھے. وہ اس علاقے کے پہلے آدمی تھے جو اعلیٰ تعلیم کے لیے ممبئی تک پہنچے اور وہاں سے ان بیرسٹر بن کر یہاں پر آئے, مگر انہوں نے آگے چل کر سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کانگریس کے حوالے سے وہ بہت ہی ایکٹیو رہے. کانگریس کے مرکزی رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا تھا. دوستو, ہرچند رائے وشن داس کے والد صاحب وشن داس نہال چند وہ بہت ہی بڑے ویوپاری تھے. ان کی باقاعدہ اس وقت پری پارٹیشن کی میں بات کر رہا ہوں, اس وقت یہاں پر مانجھو گاؤں میں فیکٹریاں چلتی تھیں اور ان کا جو کاروبار تھا وہ بیرون ملک ہوتا تھا. وہ کراچی کے تھرو ویوپار کرتے تھے. تو اتنے بڑے اپنے وقت کے ویوپاری بھی تھے. تو ان کے بیٹے ہرچند رائے وشن داس نے تعلیم کی طرف جب آئے تو وہ بیرسٹر بن کر یہاں آئے, مگر انہوں نے عملی طور پر سیاست کے ذریعے سے یہاں کے لوگوں کے حالت زار کو بہتر کرنے کے لیے وہ میدان عمل میں آئے اور آج کی کراچی کا جو جدید بانی ہے ان کو ہرچند رائے وشن داس کو مانا جاتا ہے. ان کا ایک اسٹیچو ریڈیو پاکستان کراچی کی بلڈنگ کے سامنے لگا ہوتا تھا. ان کو ٹریبیوٹ کیا گیا تھا, مگر بدقسمتی سے ہم نے اپنے اثاثوں کی, اپنی تاریخ کی, اپنی تہذیبی میراث کی کبھی بھی اونرشپ قبول ہی نہیں کی. تو ان کو بعد میں کوئی 1950 کی دہائی میں ان کے اسٹیچو کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. تو دوستو یہ تاریخی گاؤں مانجھو کا یہ مرکزی بازار چھوٹا سا 8-10 دکانیں ہیں جی, کچھ 2 ہوٹلیں ہیں اور 50 گھروں پر مشتمل یہ چھوٹا سا گاؤں. میرے یہ سیدھے سادے دیہاتی لوگ, پیار کرنے والے لوگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. تو اس طرف آئیے تھوڑا سورج کے سامنے. آپ کا نام مولوی صاحب؟ بشیر احمد. بشیر احمد صاحب یہیں کے رہنے والے ہیں؟ ہاں, میں یہیں کا رہنے والا ہوں. تو آپ نے اپنا کاروبار کرتے ہیں؟ ہاں, گورنمنٹ جاب ہے. اچھا, گورنمنٹ جاب ہے. تو آپ نے اسٹیشن کی رونق کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ انر پور اسٹیشن کو آپ نے یہ کیسے ہمارا دیکھا؟ قدیمی گاؤں ہے, تمام بہت بڑا قدیمی گاؤں ہے. ادھر اسٹیشن ہمارے لیے بہت سہولت کی ایک ذریعہ تھا کیونکہ روڈ ہم سے کافی دور ہے. تو شہروں سے جو لنک رہنے کے لیے, جانے آنے کے لیے اسٹیشن تھی. جو اسٹیشن کی نئی بلڈنگ بھی بنائی گئی تھی, پھر بھی پتہ نہیں کہ اس کو بند کر دیا. اس سے ہمیں جو ہے بڑا نقصان ہو رہا ہے. ہمیں بھی نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے آنے جانے کا ذریعہ تھا. اور یہ ہمارا گاؤں ہے, اس میں کوئی اتنی سہولتیں بھی نہیں ہیں. ہم اعلیٰ اختیاروں کو ہدایت کریں گے, ان کو درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ سہولتیں دی جائیں ہمارے گاؤں کے لیے. تو ان کے ہم شکر گزار رہیں گے. بہت بہت شکریہ جناب. یہ ہے ولیج مانجھو کا بازار چھوٹا سا, اور یہ نوجوان ادھر بیٹھے ہیں جن وقت گزاری کر رہے ہیں. السلام علیکم. چائے سٹھی ملا نہیں ملا؟ سٹھی نہ ہوندی تو ڈنڈ لگندو. صحیح ہے, چائے سٹھی کھا. واہ 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 واہ, یہ تو چھوٹے پیارے سے بچے بھی آ گئے ہیں جی ہم سے ملنے کے لیے. چھا نالو آ؟ مبین. پڑھندو آہیں؟ اسکول نہ جو آہیں؟ پیٹھو تو ہی رہتی آہیں اسکول تنجا ہلے پہ تو جلدی چھو موٹی آئی انہیں کے چھڑنا ہے. واہ 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 واہ. بابا نالو بدھا؟ پارس. تو دوستو یہ پارس ہے, چھوٹی سی بچی, اور یہ بستہ بھی اس کے ساتھ میں ہے جناب. واہ 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 واہ. تو پارس پڑھے گی ہماری بچی. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. دوستو یہ شہریار بھائی محنت کر رہے ہیں بڑی دل سے. کیا بات ہے جی. چائے کو تڑکا لگ رہا ہے جناب. تو چلیے بیٹھتے ہیں اور چائے کا کرتے ہیں انتظار.
दोस्तों इस वक्त मैं गोठ मांझू में मौजूद हूँ और ये गांव मांझू भी एक प्री पार्टीशन अपने वक्त के बहुत ही नामवर सेठ थे मांझू चंद, उनके नाम से ये गांव है। और आजकल यहाँ पर लंजाल कम्युनिटी बहुत अक्सरियत से आबाद है, तकरीबन 50 घर यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर तालीम के हवाले से काफ़ी घर शिफ्ट हो गए हैं जामशोरो, कोटरी, हैदराबाद की तरफ। और स्कूल की क्या हालत है, वो क्यों यहाँ से गए हैं, वो भी आपको मैं चल के स्कूल विज़िट कराता हूँ और वहाँ की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। तो ये एक तारीख़ी गांव मांझू, जहाँ से मोहतरम अशरफ लंजार साहब डिप्टी DS रैंक तक यहाँ पर पहुँचे और फिर वहाँ से फिर वो मज़हबी अमूर की वजारत की तरफ शिफ्ट हो गए। और उसके अलावा भी रेलवे के हवाले से जनाब ग़ुलाम हुसैन लंजार साहब जो SS रिटायर हुए, उनकी खिदमात भी ढकी छुपी नहीं है। वो यूनियन के हवाले से पूरे पाकिस्तान में उनको जाना जाता है। तो बहुत ही अच्छी उनकी एक रेपुटेशन रही और माशाल्लाह वो भी आजकल जामशोरों में ही रहते हैं। चाय आ गई है तो इंशाल्लाह आप चाय का लुत्फ़ लेते हैं बिस्किट के साथ। आगे फिर स्कूल में मुलाकात। दोस्तों इस वक्त मैं गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल विलेज मांझो के बाहर खड़ा हूँ और बाहर खड़े होने की वजह सिर्फ इतनी सी है कि स्कूल ये जैसे वैकेशंस पूरी हुई हैं 1 तारीख को, उसके बाद से इस पे ताला लगा हुआ है, स्कूल बंद है। और ये बच्चियां हैं, तकरीबन कोई 70 के करीब बच्चियां हैं जो इस स्कूल में दाखिल हैं। और एक टीचर मकामी गांव की है मगर वो भी छुट्टी पर हैं। और ये बच्चियां रोज़ एक उम्मीद लेकर स्कूल के दरवाजे तक आती हैं मगर दरवाज़ा बंद देखकर वापस चली जाती हैं। हम वज़ीर तालीम जनाब सरदार शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुंचती है तो खुदारा इन बच्चियों के मुस्तकबिल पर रहम कीजिए और इनके लिए कम से कम 2 टीचर तो होने ही चाहिए। तो आइए इन बच्चियों से बात भी करते हैं। बेटा अस्सलाम वालेकुम। आप किस क्लास में पढ़ती हैं बेटा? 5th में। और जैसे ये छुट्टियों के बाद स्कूल दोबारा नहीं खुला? नहीं। आप किस क्लास में बेटा? मैं 5 में। बेटा आप? 4 क्लास। तो ये मुख्तलिफ़ क्लासों की ये बच्चियां हैं जो इस उम्मीद पर आती हैं कि शायद आज स्कूल खुल जाए, शायद आज कोई टीचर आ जाए। तो हम सिर्फ़ इस्तदाई कर सकते हैं, हुकाम बाला से अर्ज़ ही रख सकते हैं कि इनके मुस्तकबिल की कुछ फ़िक्र की जाए। दोस्तों इस वक्त मैं गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल गांव मांझो में खड़ा हूं और मेरे साथ हैं जी यहाँ पर टीचर हैं, बहुत ही मेहनती उस्ताद जो कोटरी से सुबह ठिठकती सर्दी में यहाँ ड्यूटी सरंजाम देने के लिए आते हैं। तकरीबन कोई 35 किलोमीटर रोड से फासला बनता है कोटरी का। तो अभी स्कूल की छुट्टी हो गई है तो वापसी इन्हीं के साथ में कंपनी करके पहुँचूँगा कोटरी, ताकि वहाँ से फिर ML1 की कोई गाड़ी पकड़कर मैं आगे निकल सकूं। तो दोस्तों आपको आज का मेरा ये व्लॉग जो उनड़पुर एक अबेंडेंट रेलवे स्टेशन उसके हवाले से कैसा लगा और उसके साथ साथ मोले का इस तारीख़ी हिस्टोरिकल विलेज मांझो के हवाले से भी कुछ मालूमात जो मुझ तक मुयस्सर हुई वो आप तक मैंने कन्वे करने की कोशिश की। तो इसके मुतालिक अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नए आने वाले दोस्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच ज़रूर दे ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आप साथियों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों ये A to Z सीरीज़ के हवाले से आज का हमारा ये व्लॉग यू फॉर उनड़पुर के हवाले से। तो आप इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे तक भी चलता रहेगा। तो सांसों की सलामती तक होगी आप दोस्तों से मुलाकात फिर किसी नई स्टेशन, फिर किसी नई लोकेशन। तब तक चाहते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।